میرے دوستوں، عزیزوں، جیزس لنک کے سننے والوں، الفریڈ گیل آدمی نیو یارک سے آج کی سچی اور اچھی باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ آج کا شو ہے 343 اور شو کا ٹاپک ہے سب سے بڑا حکم۔ شو کا ٹاپک ہے سب سے بڑا حکم، اور سب سے پہلے تلاوت کلام پاک۔ آج کا جو حوالہ لیا ہے متی کی انجیل، اس کا 22 باب، اس کی 35 آیت سے لے کر 40 آیات تک، 35 سے 40 آیات تک پڑھوں گا، اور ان میں سے عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا کہ استاد توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ سب سے بڑا حکم کیوں خداوند یسوع مسیح نے کہا؟ اس نے ان سے کہا خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ دوسرا حکم جو اس سے بڑا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہیں دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند اپنی بڑی برکت نازل کرے، آمین۔ تو آج کی تلاوت کلام پاک، اور اس کے بعد میں شو شروع کرتا ہوں، اور شو شروع کرنے سے پہلے ایک خوبصورت جو میں حوالہ پڑھوں گا، یا جو پوسٹ ہے شہزاد گل صاحب، میرا پروردگار وہ ہے جس کے آگے ہاتھ پھیلانے سے امید زیادہ مل جاتی ہے۔ میرا پروردگار، ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا خالق اور مالک پروردگار، جس کے آگے ہاتھ پھیلانے سے امید زیادہ مل جاتی ہے، اور شرمندگی بھی نہیں ہوتی اور بھرم بھی رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے پروردگار، اپنے خالق اور مالک کے سامنے ہی ہاتھ پھیلانے چاہیے، دنیاوی خداؤں کے سامنے نہیں، کیونکہ دنیاوی خداؤں کے سامنے ہاتھ ملائیں گے تو پھر وہ ہمیں شرمندگی ہوگی۔ لیکن ہم اگر حقیقی باپ کے سامنے ہم ہاتھ پھیلائیں گے تو ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی۔ جیسے دنیاوی طور پر ہم باپ سے اپنے باپ کے ہاتھ پھیلائیں یا کوئی بھی ضرورت تو وہ ضرورت ہماری پوری کر دیتا ہے، اسی طرح ہمارا روحانی باپ تو ہر وقت ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اور یہی جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اپنے خالق حقیقی کے ساتھ جائیں، اور یہی جو حکم ہے کہ ہم خداوند کا سب سے بڑا حکم یہی ہے، تو اپنے خداوند سے اپنے آپ سے بڑھ کر پیار کر۔ جب ہم اس سے اپنے آپ سے بڑھ کر پیار کریں گے تو پھر کیوں نہیں، ضروری نہیں کہ وہ ہماری ہر ضرورت کو، ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اور یہی جو آج کا میرا حوالہ تھا، یہی تھا کہ ہم اپنے خداوند سے اپنے آپ سے بڑھ کر محبت کریں۔ اس کے بعد جو جزام آئزک نے لکھا ہے، بہت اچھی ایک ان کا کلام ہے، ضرورت ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ سنیں، انہوں نے لکھا ہے خاک ساروں کی ضرورت ہے ہماری قوم کو، خاک ساروں کی ضرورت ہے ہماری قوم کو، پیشکاروں کی ضرورت ہے ہماری قوم کو،
اہلکاروں کی ضرورت ہے ہماری قوم کو، بردباروں کی ضرورت ہے ہماری قوم کو. بہت ساری باتیں جزام صاحب نے لکھ دی، لیکن سب سے بڑی بات، جو سب سے بڑا حکم ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ جو ہمارے مذہبی رہنمان میں ہے، یہ بھی ان کو بتائیں کہ خداوند کا حکم ہے کہ ہم اس سے اپنی جان سے بڑھ کر بھی پیار کریں اور اپنے پڑوسی کو ایسے ہی جیسے اپنے مانیں. اور اسی لیے خاک ساروں کی ضرورت ہے کہ جو ہماری قوم کو خاک ساروں کی طرح حلیمی کے ساتھ ان کو کچھ سمجھائیں، کیونکہ ہماری قوم کو، مسیحی قوم کو ان چیزوں کی بڑی سخت ضرورت ہے. پیشکاروں کی ضرورت ہے، اہلکاروں کی ضرورت ہے، بردباروں کی جو سمجھداری کے ساتھ، کیونکہ بہت سارے حالات بگڑے ہوئے ہیں اور ان ساری چیزوں میں ان باتوں کی ضرورت ہے کہ کوئی ہماری قوم کا لیڈر سامنے آئے، ہماری مسیحی جو رہنما ہے وہ سامنے اور ساری باتیں ان کو سمجھانے والے ہو. اس کے بعد بے کسی کے دور میں کوئی تو پرسن حال ہو، اس بے کسی کے دور میں، اس مفلسی کے دور میں کوئی تو پوچھنے والا ہو، بے کسی کے دور میں کوئی تو پرسان حال ہو. کوئی بھی ہوئی، اور ہماری اس جو قوم بکھری ہوئی ہے، جو بگڑی ہوئی ہے، جو کسی کے کہنے سننے میں نہیں آتی، کوئی تو ان کا حال پوچھنے والا ہو. فکر کاروں کی ضرورت ہے ہماری قوم کو، ان فکر کاروں کی جو ہماری قوم کا فکر کریں کہ واقعی ان کو ضرورت ہے، ان کو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے. یہ جو دھندے کام کر رہے ہیں یہ ہماری قوم کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہماری قوم کی ملامت ہوتی ہے، اچھائی نہیں ہوتی. اور اسی لیے ہمارے جو قوم کے لیے فکر کاروں کی ضرورت ہے. اس کے بعد جہاں شان حالات سے صورت ہو اندھا دون، غم ساروں کی ضرورت ہے. جہاں پر ایسی حالات ہو اندھا دھن، جہاں پر اتفاق نہیں، کوئی پیار نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کے آگے لگ کے چلنے والا نہیں، کوئی رہنما نہیں ہے، اور ان کناروں کی ضرورت ہے جو ہماری قوم کو آگے لے کر چلنے والے ہو. اشک بازی کا سماچار سو پھیلا ہوا ہے، پاسداروں کی ضرورت ہے ہماری قوم کو. اشک بازی کا جو ہر طرف پریشانی میں، ہر طرح سے مبتلا ہے پریشانی میں، آنسو بہانے میں، پریشانی میں جو سما ہے وہ چاروں طرف ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بالکل اسی طرح غلامی کے حالت میں ہیں. کچھ ٹھیک ہے، ہمارے اوپر حالات ٹھیک نہیں، لیکن ہمارے اپنے جو اندرونی حالات ہیں، ہم خود بھی اپنے آپ کو غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں. جو اٹھا کر چل پڑے کندھوں پہ اپنی قوم کو. کیا بات ہے، یہ خوبصورت بات ہے کہ وہ لیڈر ہمیں چاہیے، وہ رہنما چاہیے، چاہے مذہبی طور پر ہو، چاہے سیاسی طور پر ہو، کسی بھی لیول پہ ہو. ہم نے وہ مذہبی وہ لیڈر چاہیے جو اپنی قوم کو چل پر کندھوں پر اٹھا کر چل سکے، وہ قوم اس کو لیڈر مانے. حقیقت میں چونکہ قوم کسی کو لیڈر کیوں نہیں مانتی، دونوں طرف مسلم اور کرسچن دونوں کی طرف سے یہی مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارا اعتماد بالکل جو لیڈران ہم ان کو چن ضرور لیتے ہیں لیکن ہمارا اعتماد ان پر نہیں، دونوں طرف سے. اس لیے ہم کسی پر اعتماد کرتے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے سیاستدانوں نے ہمارا اعتماد جو کھو دیا ہوا ہے، ہمارے دل توڑ دیے ہوئے ہیں. اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے، غریبی جو ہے مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اس لیے ضرورت تو ہے ایک لیڈر کی، لیکن وہ لیڈر ہو جس پر قوم پختہ یقین کرے، پختہ اعتبار کرے. ان سہاروں کی ضرورت ہے، اور ان سہاروں کی ہماری قوم کو بے سہارا ہے، بے آسرا ہے، جن کا کچھ نہیں، جن کا کوئی چرواہا نہیں، بکھری ہوئی بیڑوں کی طرح ہے.
अगर उनको एक अच्छा चिरवाहा, एक लीडर मिल जाए, वो हमारा चिरवाहा तो सबसे बड़ा हमारा जो लीडर मजहबी खुदाम यीशु मसीह हमारा, लेकिन दुनियावी तौर पर भी एक चिरवाहा होना जरूरी है कि जो हमारी मसीही कौम को जो बिखरी पड़ी है उसको कंधों पर उठाकर चलने वाला हो। प्यारे यीशु बाप की हमदो सना के वास्ते, प्यारे यीशु हमदो सना के वास्ते गीतकारों की जरूरत है हमारी कौम को। ये तो बिल्कुल गीतकारों की तो कमी नहीं, अब तो है ही सब कुछ यही, स्वाय इन चीजों के जो हमारी कौम को इन लोगों ने इस तरफ लगा दिया। गीतकार ही पैदा हो रहे हैं और गॉस्पल सिंगर ही पैदा हो रहे हैं, पादरी साहबान ही पैदा हो रहे हैं, लेकिन जो अच्छे, जो वो गीतकारों की, उन रहनुमाओं की जरूरत है जो हमारी बिखरी हुई कौम को इकट्ठा कर सके। प्यारे यीशु बाप की हमदो सना के वास्ते, वो तो जिजाम सब कमी नहीं है, हमदो सना के लिए तो फेसबुक भरी पड़ी हुई है और हर तरफ दिन रात शफाया इबादत और मौजजाती इबादतें होती रहती हैं। इन चीजों की कमी है तो सिर्फ हमारी कौम को एक साथ लेकर चलने वाली, और यही आप अपनी इस गजल में नज़म में कह रहे हैं, बात जिसाम से चारों करो या ना करो, बात जिसाम से चारों करो ना करो, कलमकारों की जरूरत है हमारी कौम को। बिल्कुल ठीक बात है, कलमकार हैं बहुत है, जैसे गीतकार बहुत है, लखारी बहुत है, गॉस्पल सिंगरों की कमी। लेकिन कल मैंने बहुत सारे लोगों को, आगे वो पोस्ट पढ़ूंगा कि मैंने बहुत सारे पास्टर साहबान को वो पोस्ट सेंड की, लेकिन सिर्फ एक पास्टर का जवाब आया, बाकी ना किसी और का जवाब आया, ना किसी पास्टर का जवाब है। सिर्फ एक पास्टर ने लिखा कि थैंक यू, हम इस पर कुछ काम कर रहे हैं। तो यही है कि हमें कलमकारों की भी कमी नहीं है, हमारे गाने वालों की कमी नहीं, पादरी बिशप साहबान की कमी नहीं, कमी है तो सिर्फ एक अच्छे लीडर की, बहुत अच्छे लीडर की, जो लोग वाकई उस पर इत्मीनान करें। क्योंकि जब हमारे लोग इलेक्टिव के भी आते थे उस वक्त भी यही माहौल था, अब सिलेक्टेड होके जा रहे हैं, फिर भी कोई पुरसान हाल तो नहीं है। इसलिए हमारी कौम को बहुत सारी, जैसे खाकसारों की जरूरत है, पेशकारों की जरूरत है, अहलकारों की जरूरत है, बुर्दबारों की जरूरत है, और खुदा करे कि ये सब कुछ हमारी कौम को मैसर आ जाए ताकि हमारी कौम भी किसी जगह पर पहुंच सके। तन्हाई और मैं, बहुत अच्छी पोस्ट। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में कितने गलत अंदाजे लगाते हैं, मेरी नीयत मेरा अल्लाह जानता है, और यह बात मेरे इत्मीनान के लिए काफी है। अगर हम खुदा का हुक्म मानने वाले हो कि हमने एक दूसरे से प्यार करें, खुदा का सबसे हुक्म मोहब्बत, प्यार और इत्तेफाक की बात है, तो फिर हमें एक दूसरे खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं। अगर हम बिल्कुल मेरी नीयत मेरा अल्लाह जानता है, और ये बात मेरे इत्मीनान के लिए काफी है। अगर आपके खिलाफ कोई बोलता भी है तो आप इस बात को महसूस न करें, आप अपना काम करते चले जाए, और आपकी अगर नीयत साफ है, मेरी और आपकी अगर नीयत साफ है, आप सच्चे और अच्छे बंदे हैं, सच्ची और अच्छी बातें करने वाले, तो फिर कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं। लेकिन अगर जो खुदा का सबसे बड़ा हुक्म है हम उस पर भी चलते जाएं कि हम अपने खुदा को अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करें, अपने पड़ोसी को भी अपनी तरह प्यार करें, और उनके साथ भी एक जैसा। और जब तक ये कौमों में बात नहीं आती, वो कौमें कभी भी कोई मंजिल हासिल नहीं कर सकती, और यही हमारे मुल्क की और हमारे लोगों की कमजोरी है। उसके बाद सैमी गिल साहब लिखते हैं, गलती को गलती जानकर भी इसकी असलाह ना करने वाला एक और गलती कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। क्यों हमारा बगाड़ पड़ा हुआ है? क्योंकि हम एक बंदे को गलती की, चलो छड़ो यार मिट्टी पाओ,
फिर गलती की, फिर छोड़ दिया। आज गलतियां कर करके हमारा मुल्क तबाह हाल हो गया, और वो गलतियां करने वाले अरबों रुपए कमाकर आज जेलों में है। अगर वक्त पर जबकि फौजी हुक्मरान थे और फौजी हुकूमतों में भी इनको खुली छूट थी और वो सब कुछ करते रहे, और फौजी हुक्मरान भी अगर यही कहा को अपनी हुकूमत को कायम करने के लिए इन लोगों का सहारा लेते रहे, और वो गलती बिल्कुल नहीं किसी ने पकड़ी। और आज वो गलती यहाँ तक पहुंच गई है कि गरीब आदमी भूख से मर रहे हैं। क्या क्या किधर के रोटी भी इतनी महंगी, दूध इतना महंगा, फ्रूट गरीब आदमी वैसे नहीं खा सकता। तो इसलिए हम अगर गलती को पकड़ लें और दोबारा गलती ना करने दें तो फिर बहुत सारे हालात सुधर सकते हैं। उसके बाद दूसरी पोस्ट है मिगेल की, सबसे बड़ी हकीकत सिर्फ एक शख्स आपकी जिंदगी बदल सकता है और वो आप खुद हैं। सबसे बड़ी बात, अगर मैं या अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश नहीं करते तो कोई किसी की जिंदगी बदल ही नहीं सकता। क्योंकि जैसे ही ऊपर मैंने पोस्ट पढ़ी है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कितने गलत अंदाज है, चूंकि हम दूसरों की गलतियां निकालते हैं या दूसरे की आंख की जो छोटा सा तिनका है वो देखते हैं और अपनी आंख शतीर नहीं देखते। और इसी वजह से, यही वजह है कि एक शख्स आपकी जिंदगी बदल सकता है कि आप खुद हैं। जब तक मैं और आप कोशिश नहीं करेंगे या आने वाली नस्लों की जिंदगी बदलने के लिए मुझे और आपको कोशिश करनी है, हम ना किसी पे एतमाद करें, क्योंकि आज का दौर यह है कि नस्लें बिगाड़ने वाली बात है, सुधारने वाली बात नहीं। इसलिए हमने अपने आप को ठीक करना है और अपनी गलतियों का खुद इस्लाह करनी है और खुदा के सबसे बड़े हुक्म को मानना है कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपनी जान से भी बढ़कर प्यार कर और अपने पड़ोसी को भी इसी तरह अपने से बढ़कर प्यार करने वाला हो। तो उसके बाद आस्टर जेसी का तमाम चर्च पासबानों से गुजारिश है, ये भी कम्युनिटी की बात है, तमाम चर्च पासबानों से गुजारिश है कि कम्युनिटी की फलाह के लिए काम कीजिए। बिल्कुल ठीक बात, मैं एस्टर भी आपके साथ हूँ 100%, और मैं इन्हीं बातों पे बोलता हूँ और यही मेरा शो है, सच्ची और अच्छी बातें। और आपने बहुत सच्ची और अच्छी बात लिखी कि तमाम चर्च पासबानों से गुजारिश है कि कम्युनिटी की फलाह के लिए काम करें, जिसे मसीह और शागिर्दों ने, जैसे खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्दों ने खिदमत करनी चाहिए ताकि वो दूसरों को खाली करके चलता है। इसी तरह जब जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने और उसके शागिर्दों में खुदावंद यीशु मसीह के जाने के बाद उसके शागिर्दों ने बिखरा हुआ माशरा था, उन्होंने मसीह की तालीम को, जो सच्ची और अच्छी तालीम, उससे सच्ची और अच्छी तालीम है ही नहीं, तो उस तालीम के हवाले से हम लोगों को इकट्ठा किया, मसीही कौम का नाम दिया। और वही जो आस्टर बीबी कह रही है कि तमाम चर्च पासबानों से के फलाह के लिए काम करें, क्योंकि आजकल एक बहुत बड़ी पोस्ट, कल मैं उस पर शो करूंगा, जो पोस्टें आ रही हैं कि झाड़ू छोड़ो, किताबें पकड़ाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, क्योंकि हमारी कौम जो सबसे बड़ी, मैं एक सच्चा वाकया बताऊं आपको, नहीं वहां नहीं चूड़ा समझा जाता। हम जो यहाँ गए, मैं एक दिन किसी मैकेनिक के पास, पाकिस्तानी मैकेनिक था, उसके पास गाड़ी लेके गया, कोई काम था या ऑयल चेंज कराना था, कुछ काम था, तो वो किसी से बात कर रहा था और मैं उधर मौजूद था और पता नहीं कोई मुस्लिम भाई उससे बात कर रहा था और उसने कहा यारो फलाना चूड़ा, इस मुल्क में भी हमें ये खिताब मिलता है यार, वो फलाने चूड़े का कोई फोन आया उसके लिए, पता नहीं ऐसी कोई बात। तो ये बात ये जो हमारे पीछे एक लानत लगी हुई है, ये मत सोचें कि इधर नहीं है,
इधर भी ये लोग हैं, हमसे ज्यादा है, और वो हमारे सामने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीछे से चूड़ा ही काट जाते हैं। इसलिए हमें जो आस्टर गेल की सबसे बड़ी, जो मैं समझता हूँ इस पोस्ट का मतलब ही यही है कि कम्युनिटी के लिए काम करे। आवाज़े खलक नकारे खुदा वाली बात है। अब तो बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी के लिए करे, ये झाड़ू छिड़ाए, ये गंदा काम छिड़ाए। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान, उनके लिए एक लानत है, वो कहां से, और वो शर्मिंदगी उनको उठानी पड़ती है इस लफ्ज से, जो कि असेंबलियों में भी हमें खुले तौर पर आजकल कहा जा रहा है, और कोई उनको रोकने वाला नहीं है, क्योंकि सबको अपने अपने मतलब की बात करनी होती है। तो ये एक्चुअली जो पोस्ट लिखी थी, नामालूम मसीह है कोई उसने, लेकिन आस्टर बीबी ने इसको फेसबुक पर डाला। उसके बाद शफीक राव ने मौलाना रोम से किसी ने पूछा कि कौन सी मौसीकी की आवाज हराम है। मौलाना रोम ने जवाब दिया कि अमीरों के बर्तनों में बजते हुए चमचों की मौसीकी की आवाज जो किसी भूखे गरीब और मस्कीन के कानों तक पहुंचे। बहुत बड़ी पोस्ट। वो म्यूजिक हराम है कि जो अमीर बड़े बड़े अपने बच्चों के, अपने खानदान के साथ बड़े बड़े होटलों, बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में जाकर खाना खाते हैं, तो मौलाना रोम कह रहे हैं कि जो उनके छुरी चमचों की जो म्यूजिक बजता है वो हराम म्यूजिक है, क्योंकि वो अपनी जात के लिए, अपने खानदानों के लिए, और जब उन चमचों की आवाज गरीब बच्चों, गरीब लोगों, गरीब खानदानों तक पहुंचती, तो जाहिर है वो उनके दिल भी तरसते होंगे कि काश हम भी इन चमचों के साथ खाएं, और ये म्यूजिक हमारे चमचों से भी निकले। और ये मौलाना रूम ने कहा कि सबसे बड़ी हराम मौसीकी ये वाली मौसीकी है। बहुत अच्छी पोस्ट शहजाद राव की, शफीक राव की। उसके बाद मेरी माँ, बहुत अच्छी पोस्ट है। एक मुद्दत बाद दो दोस्त आपस में मिले तो एक ने बातों ही बातों में दूसरे से उसकी माँ के मुतालिक पूछा कि इन दोनों माँ का क्या हाल है। वो बोला आज माँ का जन्मदिन है, सुबह सुबह उनसे मिलने गया था, अभी ओल्ड होम से ही आ रहा हूं। क्या बात, मतलब जवान बेटा आज उसका सालगिरह है और वो ओल्ड होम में है। आप समझते हैं ओल्ड होम जहां पर बुजुर्गान, जो बाबे माइया को, लोग जिनको घरों में रखना पसंद नहीं करते किसी भी वजह से, अपनी बेगमात की वजह से या ससुराल की वजह से, बहुत सारी वजूहत हैं, तो फिर वो ओल्ड होम में छोड़ देते और बड़े दावे से कह रहे कि अभी मैं ओल्ड होम से आ रहा हूं अपनी मामा को हैप्पी बर्थडे कहने के, और सब ठीक है मेरे दोस्त, सब ठीक है। फिर वो अचानक उसे ख्याल है, उसी दोस्त को जो कह रहा है कि मेरी माँ ओल्ड होम में, अचानक उसे ख्याल है कि अखलाकन उसे भी उसकी माँ के बारे में पूछना चाहिए। तुम्हारी माँ तो तुम्हारे साथ ही रहती होगी ना। आगे उसने बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत जवाब दिया। ये सुनते ही दूसरे दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं दोस्त, नहीं दोस्त, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि माँ को रख सकूं। बहुत बड़ी बात, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि माँ को रख सकूं। आज भी मैं माँ के साथ रहता हूं। बिल्कुल, आप, मैं किसी भी एज में पहुंच गया हूं, आप भी, अगर खुदा करे मेरी माँ आज जिंदा होती तो मैं जरूर यही लफ्ज कहता कि मैं माँ के साथ रहता हूं। और हम बड़े दावे से कहते हैं कि मेरी माँ, मैंने अपनी माँ को पास रखा, मैंने अपने बाप को साथ रखा है, लेकिन इस बात को नहीं याद करते कि इस माँ बाप ने ही हमने खुदा की मेहरबानी से जन्म दिया, हमें यहाँ तक पहुंचाया, और हम कह रहे हैं कि हमने इसे रखा है, क्योंकि सारी उम्र तो आपने, उन्होंने पाला आपको पास रख के, और आज आप कह रहे हैं हमने इसे रखा। नहीं, उस दोस्त ने कहा नहीं, मैं माँ के पास रहता हूँ। बहुत खूबसूरत बात, अच्छी बात।
اس کے بعد سیمی رمنیت صاحب بہت اچھا انہوں نے جشن آزادی کے حوالے سے لکھا ہے، تو پچھلے سال بھی آئی تھی بات، لیکن اتنا کچھ ہوتا ہے کہ میں بھول گیا، لیکن آج میں اس بات کو پڑھا۔ اس سے پہلے اردو بہترین اردو شاعری کا ایک شعر ہے، غلطی تمہاری نہیں جو تم نے دھوکہ دیا ہے، غلطی تمہاری نہیں جو تم نے دھوکہ دیا ہے، غلطی میری تھی جو تمہیں میں نے موقع دیا ہے۔ بالکل یہی سب سے بڑی بات ہے کہ چونکہ ہم خدا کے حکموں کو تو مانتے نہیں، ہم تو اس پر عمل نہیں کرتے، ہم انسانیت کے حکموں کو مانتے ہیں، اور غلطی تمہاری نہیں جو تم نے دھوکہ دیا، میری غلطی جو میں نے آپ کو یہاں تک چانس دے دیا، موقع دے دیا، اور غلطی میری تھی جو تمہیں موقع دیا۔ بہت ساری باتوں میں آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ پھر پریشان ہوتے کہ یار میرا دوست تھا، میں نے اس کو گھر آنے کی جو آنے سے منع نہیں کیا، اور یہ میرے گھر میں ہی ڈاکہ زنی کر دی، یار مار کر دی، اگر میں اس طرح کروں۔ اور یہ بہت سارے واقعہ آج بھی ہو رہے ہیں کہ آپ کو دوست گھر لے جاتا ہے، پھر اسی دوست کے آپ گھر میں بری نظروں سے یا برا کوئی نہ کوئی کام کر دیتے ہیں، اور یہ غلطی کس کی تھی؟ میری تھی۔ اگر میں پہلے دن ہی اس غلطی کو روک دیتا، اس کے قدم دروازے کے اندر نہ جانے دیتا، تو آج یہ غلطی کا خمیازہ مجھے نہ بھوگنا پڑتا۔ اس کے بعد جو میں نے ابھی کہا شکوے کے نام سے سیمی رمنیت، سیمی وہ چکے سیمویل، شاید سیم بھی کہتے ہیں، اور ان کا نام ہے سیمویل رمنیت، تو سیمی تخلص کرتے لکھتے ہیں ہم جشن آزادی منائے کیوں۔ میں کہتا ہوں انہوں نے لکھا ٹھیک ہے بالکل، ہم جشن آزادی منائے کیوں، یہ پرچم ہم لہرائے کیوں۔ اس پرچم میں سفید تھوڑی سی پٹی جو ہے وہ ہے تو کلیئر تو کی، لیکن اس پٹی کا ہم نے کیا فائدہ ہے؟ ہم نے تو دوسرے درجے کا بلکہ تیسرے درجے کا شاعری مانا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے سیمی صاحب کہہ رہے کہ ہم جشن آزادی کیوں منائیں، ہمیں ملی کہاں آزادی ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے، ہمیں ملی کہاں آزادی ہے، ہم قید میں ہیں، بربادی ہے۔ بالکل کچھ ٹھیک ہے، ہمارے جو حکمران ہیں وہ تو اپنے آپ پر ہی اپنے مطلب حل کرتے، اپنی جیبیں بھرتے ہیں، وہ غریبوں کا کام، وہ بھی غلام ہے۔ ملک آزاد ضرور ہوا لیکن ہم آزاد نہیں ہوئے، ہم غلام ہیں، ہم اور لوگوں کے غلام ہیں، ہم ہندوؤں کی غلامی سے، انگریزوں کی غلامی سے، وہ ہم اس وقت جب جو پارٹیشن ہوئی ہمارے کسی مسیح خاندان کو نقصان نہیں ہوا تھا، یہ حقیقت ہے۔ اس وقت بھی جن لوگوں کے کراس تھا یا ایسا کچھ نشان دیا گیا تھا، جس کے بعد دروازے پر کراس یا یہ دیکھتے تھے وہ اس کے گھر سے نہیں جاتے تھے، کیونکہ یہ جھگڑا تھا مسلم اور ہندوؤں کا۔ پھر لیکن ہم اس لیے آزادی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے نام سے ہم نے ووٹ دیا اور ہم بھی آزاد ہو گئے، ہم ویسے ہی ادھر بھی تھے اور ایسے ہی ادھر بھی ہیں۔ اس کے بعد ہے پرچم ہر چم ظالم کے عادی ہیں، ہم لیڈران ظلم کے عادی ہیں، ظلم کو اپنا بنائے کیوں، ہم جشن آزادی منائے کیوں، ہم ظالم لیڈروں کے عادی ہیں۔ بالکل 100% سیمی صاحب آپ نے صحیح لکھا ہے، کیونکہ ابھی الیکشن ہوں گے تو پھر بھلے نواز شریف اور زرداری قید میں ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو ہم ان کو ووٹ دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 75% لوگ ابھی بھی زرداری کے اور نواز شریف کے گن گاتے ہیں، بڑی باتیں فیس بک پہ آتی ہیں، وہ شیر ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں، لیکن اس بات کو کوئی بھی نہیں، جو 25-30% مان رہے ہیں تو وہ تو کیا بات ہے ان کی، لیکن ہم حکومت کو کوئی داد نہیں دے رہے کہ وہ کتنا کچھ کر رہے ہیں، جو کہ روز کچھ نہ بتایا جاتا ہے، کتنے ارب قرضہ اتار دے، اتنا یہ کر، لیکن
हम उनके गुण नहीं गाते हैं, चूंकि हम जालिम लीडरों के आदी हो चुके हैं और हम उन्हीं की बात मानते हैं। हमारे पांव में पड़ी हैं जंजीरें उन्हीं जालिमों की, जालिम लीडरों की, बिगड़ी सबकी तकदीरें हैं। हम उन जालिमों की जो हमारे पांव में जंजीरें पड़ी हुई हैं, जिनको खुदा के हुक्म का कोई पता नहीं, जो खुदा को मानते नहीं, तो वो मोहब्बत को क्या मानेंगे, वो खुदा के हुक्म क्यों मानेंगे। जो सबसे बड़ा हुक्म खुदा के तू अपने दिल से, अपनी जान से खुदा को प्यार कर, बढ़कर अपने पड़ोसी को भी प्यार कर। तो जब उनको इन हुक्मों का, हालांकि सब कुछ कुरान पाक में भी है, क्योंकि मोहब्बत तो हर मजहब का दर्जा अव्वल है, लेकिन वो इन बातों को नहीं मानते। जालिम को अपना भ्यान बनाए क्यों हम, वो तो सैमी साहब तो लिख रहे हैं हम जालिम को अपना बनाए, फिर लेकिन हम खुद, ये हमारी गलत है कि हम जालिम को फिर अपना बनाते हैं। हाँ, हम जश्न आजादी मनाए क्यों, हमारे पाँव में पड़ी हैं जंजीरें, बिगड़ी सबकी तकदीरें हैं। हाकिमों की सूली सोई जमीरें हैं, हाकिमों की जमीरें सोई चुके, कि जो खुद खुदा का हुक्म नहीं मानते, तो उनकी जमीरें तो सोई। अगर वो खुदा को माने, जाने कि खुदा है और खुदा वाकई सजा दे सकता है, दोज़ख और जो जन्नत या फिरदौस का मालिक वो है, लेकिन हम इन चीजों को जो जालिम लीडर है भूल चुके हैं। हाकिमों की सोई जमीरें हैं, खुशियों के दीप जलाएं क्यों, हम किस खुशी के दिए जलाएं, कौन सी लाइटिंग हम करें कि हम तो गुलाब हैं, लेकिन हम मजबूरन, अभी जैसे बहुत सारी पोस्टें आ रही हैं कि हम कश्मीर के लिए तो इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी कौम में, बिल्कुल मैं इस पोस्ट के हामी हूं कि एक दफा भी हमने कभी यूहन्नाबाद के कैदियों के लिए और कितने सारे कैदी कभी भी हमने इकट्ठ किया है। हम खुद भी बहुत सारी गुलामियां अपने ऊपर तारी हुई हैं, हम उनको खुश करने, ये ठीक है कश्मीर एक मसला आज से नहीं चला रहा, बल्कि मैं समझता हूं कि ये वो मसले हैं 2-3 के पाकिस्तान के लिए, जिन्होंने पाकिस्तान को दबाए रखा हो। अगर खुदा न खास्ता जंग होती तो फिर पाकिस्तान की बर्बादी, और रोज जो जल से जुलूस निकल रहे हैं, तो वो क्या है, कारोबार बंद है, सब कुछ बंद है, और हम उनके पीछे जा। ठीक है, इमरान खान का कश्मीर हमारा है, कश्मीर में ज्यादती और हमें करनी चाहिए, लेकिन हम अपनी कौम के लिए क्यों नहीं कुछ करते। हम फेसबुक पे लोग डाल देते हैं इमरान खान जी उनको भी आजाद करो, लेकिन इमरान खान के पास इतना टाइम है कि आपकी फेसबुक देखता बैठा हुआ है, वो आपको एहतजाज करना है, हमको एहतजाज करना है। किसी अभी कश्मीर का मसला है, उसने सारी दुनिया को हिला के रख दिया हुआ है कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, और जब तक वो रोना रो रहा है तो जो दुनिया है वो उसकी फेवर में आ रही है। और यही बात है कि जब तक आप खुद नहीं इन बातों के लिए निकलेंगे, वो कुछ नहीं हो सकता। इस मुल्क में रोटी दाना नहीं, इस मुल्क में रोटी दाना नहीं, आप समझते हैं, जहां बिजली ने को भी आना नहीं। मुझे 20 साल हो गए मक्का में आए हुए, जैसा छोड़ के आता वैसे ही है, और कराची में तो इतना गंद हो गया कि मैं देख के परेशान हूं, और लीडरान और सब एक दूसरे पर जो जितना गंद उधर पड़ा हुआ है, उतना ही गंद उठा के वो एक दूसरे ऊपर फेंक रहे हैं। वो उसने करना है। वजीर आला साहब ने भी एक ब्लू जैकेट जो वो पहन के तो ऐलान कर दिया जी सफाई करनी। ये सारे बयान झूठे देते रहते हैं कि ये जैकेट पहन के ब्लू जैकेट, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं। आप दफ्तर में आप दूसरे काम कर रहे हैं, अगर ब्लू जैकेट पहनी थी तो खुद भी साथ जाके बेलचा पकड़ता, फिर लोग उसको देख के आते कि जो एक मरकजी वजीर था उसने भी ऐलान किया, लेकिन सुनी तो उसकी भी किसी ने नहीं। तो ये सारी
रोटी पानी के गंदगी के मसले बहुत ज्यादा, लाहौर में इस्लामाबाद में भी खबरें आती रहती हैं। उसके बाद जहां गरीब का कोई ठिकाना नहीं, जहां गरीब का कोई ठिकाना नहीं, इस मुल्क के गीत गाएं क्यों हम जश्न आजादी, जब हम गरीबों का कोई ठिकाना ही नहीं है। हमारे साथ तो आए दिन चर्चेस में हमले होते हैं, वो जगह इसलिए हमले करते हैं कि वो जगह खाली हो जाए और हम अपने उधर प्लाजे या अपने महल बनाने वाले बने। और इस मुल्क के फिर भी सैनी साहब तो कह रहे गीत क्यों, लेकिन हम हर वक्त गीत गाते रहते हैं, हम जश्न आजादी मनाए क्यों। इस मुल्क में कोई इंसाफ नहीं है, बिल्कुल कोई इंसाफ नहीं, कोई रिश्वत के खिलाफ नहीं, बिल्कुल रिश्वत के कोई खिलाफ, ये सब जानते हैं। जैसे पीपल्स पार्टी के लीडर हैं वो जरदारी के वो, लेकिन उनको पता है, लेकिन वो उसकी उनको पता है कि इसने ये किया है, लेकिन लीडरान चूंकि खुद भी झूठे हैं, उन्होंने उसके साथ मिलकर किया हुआ है, तो इसलिए नवाज शरीफ की उसकी वो तारीफें या उनको ऊपर ला रहे हैं कि भुट्टो की तरह इनका नाम भी ऊपर आ जाए। लेकिन जो भुट्टो या बेनजीर भुट्टो ने किया वो तो ये सोच भी नहीं कभी सकते। उसके बाद रिश्वत के कोई खिलाफ नहीं, ये तो हम खुद उनके साथ होते कि रिश्वत दो और ले लो, नसीब से कोई साफ नहीं। ये परचम हम लहराए क्यों, हम जश्न आजादी मनाए क्यों। बहुत अच्छा बुजुर्ग शायर हैं, बहुत अच्छे, काफी सीनियर शायर, लेकिन बहुत अच्छा लिखा जश्न आजादी के हवाले से। उसके बाद राबिया अवान की पोस्ट, अपनी अहमियत जान के बाद भी किसी के साथ लटके रहना हमाकत और बेइज्जती का बायस है। दिल मंजूर करे और जहां हिम्मत ना हो वहां बैठे, जहां अहमियत ना हो वहां बैठे रहे। और हम वहां ही बैठते हैं जहां हमारी अहमियत नहीं होती। क्यों हमारा लाल शायद साढ़े किसी काम आ जाए। और बहुत सारे रिश्ते इसी वजह से कायम रहते हैं कि हम कोई ना कोई जो झूठ बोल के अपने पीछे, तो हम कहते चलो यार कोई बात नहीं, कभी भी काम आएगा ना, हालांकि ये गलत बात है। हम खुद उनको इन बातों की अहमियत देते हैं और हम खुद ही जलील ख्वार होते हैं। उसके बाद जो अभी बात कर रहा था अफजल गिल, मेरे भाई हैं लाहौर में, लेकिन एक्चुअली पोस्ट जो है बकलम आशिर विल्सन ने ये पोस्ट लिखी है। कल के शो में मैं कुछ बातें इसकी पढ़ूंगा। पास्टर पादरी फादर साहबान अगर इस बात को यकीनी बनाए कि अपनी कलीसिया के किसी भी नौजवान के हाथ में झाड़ू नहीं बल्कि किताब या औजार, हुनर जीना है, हुनर सीखना है, ये मतलब ये है, तो नस्लों से चली आती इस मलामत को अगले चंद सालों में धकेला जा सकता है। आए कलीसिया रैन माओ, कलीसिया को रात खाओ, कौम का बोझ उठाओ। बिल्कुल सच्चा लिखे, क्योंकि सबसे ज्यादा पादरी बिशपैन साहब हैं जिनके हाथों में ये लोग हैं, जिनको रोज ये, लेकिन कभी मेरे ख्याल उन्होंने ये नहीं उनको समझा है कि हम पादरी हैं, हम उतनी बदनामी आपकी भी है कि अगर किसी को चूड़ा कर जाए तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम भी इसी कौम के हैं, हम भी मसीह कौम है, हमें भी कर। अगर हम ये थोड़ी सी हिम्मत करें और उनके माँ बाप को समझाएं कि ये छोड़ें, वक्त लगेगा। कल एक पोस्ट, हम एक अच्छे काम की पोस्ट डालते हैं और उसके बाद नेगेटिव पोस्ट आ रहे, और एक मुझे नहीं पता, मैं देखूंगा किसके लिखा था, ये क्यों आप कर रहे हैं, वो कैसे झाड़ू छोड़ देंगे, उनको रोटी कौन देगा, उनको पानी को। तो फिर कौम को तो हम खुद ही रोक लेते हैं कि उनकी बात ना मानो। इसलिए कि जब भी हमारे मुल्क की एक जो नेचर है वो ये कि हुकूमत भी कोई ऐलान करती तो दूसरे दिन लीडरान उसकी नफी कर देते कि हमें ये मंजूर नहीं, और यही हमारी मसीह कौम कर रही। ये पोस्ट डाली और उसकी नेगेटिव उसके पास भी जो आ गया कि ये नहीं हो सकता। हमने अपनी कौम को चलाने के लिए, बढ़ाने के, आगे बढ़ने के लिए
नौजवान मसीहों को स्कूल की किताबें स्कूलों में भेजना होगा, और ये सबसे ज्यादा जो कर सकते हैं वो पादरी साहबान कर सकते हैं, फादर साहबान कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी पोस्ट है उर्दू गजल की, अल्लाह से जब भी मांगो, अल्लाह से जब भी मांगो बेहिसाब और बिला झिझक मांगो, वो एक जात है जो वापसी का तकाजा नहीं करती है। बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि खुदा की जात हमें देती तो उसने तो जिताना भी नहीं, यार मैंने आपको इतने लाख दे दिया या इतने हजार दे दिया, मुझे वापस करो, वो दुनियावी नहीं, रूहानी जात है, रूहानी बात है। और उससे हमें बिला झिझक लेकिन साफ दिल से, मतलब से तो नहीं, वो तो दिल और गुर्दों के राजों को जानने वाला है, इसलिए हमने मतलब से नहीं, हकीकत में, और वो देखेगा कि वो जरूरत है तो वो हमारी इस जरूरत को जरूर पूरा डट के मांगे, जैसे रूहानी तौर पर माँ बाप के साथ बच्चे मांगते हैं, जमीन पे भी लेट जाते हैं, तो आप खुद भी बाप से मांगे, सजदा करे, जमीन पर जाकर भी मांगे, तो वो जरूर आपकी दुआ सुनेगा। तो आज के शो का इख्तिताम कुछ दुआएं अपने भाई जो स्वात में है उनकी अम्मी के लिए करने लिए, उनका नाम उन्होंने दुआ के लिए, खुदा उनकी सारी जो भी कुछ उनको जरूरतें हैं खुदा पूरी करे, उनकी माँ को सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, उनकी बहन हमारी बेटी हमारे पास है तो खुदा बाप उनके भी सारे काम सीधे करे, रीमा मैरी के लिए, शाजिया बत्ती के लिए, और अपनी बहन राबिया अहमद के लिए, और भी जितने जिके मलिक साहब कहते रहते हैं, और भी जितने बीमार हैं जिनको जरूरत है, जैसे कि समी रमनीत साहब की गजल पढ़ी मैंने कि क्यों हम गुलामी से क्यों नहीं निकलते, हमने झाड़ू की बातों को क्यों नहीं छोड़ते, हमें कोई लीडर मिलना चाहिए तो खुदा हमें हमारी हिम्मतें बढ़ाए ताकि हम कुछ ना कुछ हासिल करने वाले बने, और इससे हमारी जो बदनामी, हमें जो बहुत सारी बातों जो हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को फेस करना पड़ती दफ्तरों में, बाजारों में, तो वन से हमारी जान छूट जाए। खुदा बाप जी और भी जितने बीमार हैं, जो अस्पतालों में, जो घरों में बीमार है, खुदा बाप जी उनको सेहत और तंदुरुस्ती ताकर मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती के लिए, कश्मीर की जंग को रोकने के लिए एक दूसरे में इतना कुछ हिम्मत पैदा कर दे कि दोनों मुल्क मिल बैठे अमन और सलामती की बातें करें और जंग का मसला टल जाए। और भी खुदा बाप जी तो मैं अपने लिए, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, मैं अपने कानों को खोलने के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ, अपनी बीवी के लिए, कि सबको हमें जैसे आज के दिन तक तूने सेहत और तंदुरुस्ती ताकि किसी चीज की कमी नहीं आने देता, तेरे निगहबान फरिश्ते हर वक्त हमारे साथ मौजूद रहते हैं, इसी तरह हमारी कौम के साथ उनको भी कोई अक्लोतनाई दे कि हम भी आगे बढ़ने वाले बने और एक अच्छी मसीही कौम बनने वाले बने। ये मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे खुदाम यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। तो आज का शो मेरा इख्तिताम पजीर होता है, जो कि शो का टॉपिक था खुदा का सबसे बड़ा हुक्म क्या है, कि एक दूसरे से मोहब्बत करें और अपने आप से बढ़कर अपने खुदा को प्यार करें, जिसने हमें इस जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है। और जब उसके हुक्मों को मानेंगे तो फिर उसको हमें उसकी जो भी हम मुझसे मांगे, कि जैसे आखिरी पोस्ट उर्दू गजल की, अल्लाह से जब भी मांगो बेहिसाब मांगो और बिला झिझक मांगो, वो ही एक जात है जो वापसी का। लेकिन ये हम उसी वक्त तकाजा कर सकते हैं या मांग जब हम उसके हुक्मों पर अमल करो। यही मेरा शुक्र है, खुदा का हुक्म माने, जो खुदा के हुक्म ने जैसे के हवाले में लिखा कि तौरेत और अंबिया का सबसे बड़ा जो दारोमदार है इसी हुक्म पर है। खुदा सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।